جبکہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو حکومتی لیول پر ہیں وہ ہوتے رہے ہیں، کبھی اپ، کبھی بہت اپ، کبھی تھوڑا سا ڈاؤن، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ تعلقات 1947 سے لے کر آج تک عوامی لیول پر بڑے خوشگوار رہے ہیں، یعنی امریکن عوام اور پاکستانی عوام، یا یہ کہہ لیں کہ پاکستانی عوام اور امریکن حکومت کبھی نہیں رہا۔ ہمارے یہاں کی جو پالیسیاں ہیں، سیاسی پالیسیاں، میں سیاسی پالیسیاں کہوں گا اور خارجہ پالیسیاں، یہ پالیسیاں ہمیشہ امریکن کے زیر اثر رہی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سپر پاور ہے اس لیے زیر اثر رہیں گی۔ اگر سپر پاور ہے اور زیر اثر رہیں گی تو پھر ایران کی پالیسی زیر اثر کیوں نہیں ہے؟ پھر ایران سے ہٹ کر آئیے ذرا، جو امریکہ کے بالکل پڑوس میں ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کو وینزویلا کہتے ہیں، اس کے اوپر امریکہ کا اثر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اکثر سیاستدان امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے چھوٹے چھوٹے کلرک سے اپنے تعلقات کو جوڑنا فخر کی بات سمجھتے ہیں، اور ایک معمولی سی امریکن سفیر جب پاکستان میں جب بنتی ہے امریکن سفیر، تو پھر جو ویکی لیکس میں آپ نے دیکھا، وہ دیکھا آپ نے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ کیا ہمارے جو ملک کے یہ جو آزاد پالیسیاں ہیں یا یہ جو خارجہ پالیسیاں ہیں، کیا یہ امریکن تسلط سے کبھی آزاد ہوں گی؟ اور اگر ہم ماضی میں چلیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس نے امریکن پالیسی کے خلاف جب کھڑا ہوا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، تو پھر ہینری کسنجر نے کہا تھا کہ ہم عبرت کا نشان بنا دیں گے، تو پھر دنیا نے دیکھا کہ ہمارے ذریعے ہمارے لیڈر کو، پاکستان کے ایک لیڈر کو، مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک لیڈر، بلکہ 3 لیڈر، بومدین، شاہ فیصل اور ذوالفقار علی بھٹو، ان تینوں کا کیا حشر ہوا؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ 3 اہم مہمان ہیں، آئیے ان سے تعارف کراتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں سینیٹر حاصل بزنجو صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ نیشنل پارٹی، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب شگفتہ جمانی صاحبہ، اسٹیٹ منسٹر فار ریلیجیس افیئر، پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ اور ڈاکٹر عارف علوی، سیکرٹری جنرل تحریک انصاف، آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ میں آپ سے بات شروع کروں گا۔ پاکستان اپنی آزاد سیاسی پالیسیاں اور خارجہ پالیسی بعد میں لے لیتے ہیں، سیاسی پالیسیاں کب بنائیں گی سر؟ دیکھیں، پہلے تو میں تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو میرا مختلف رہتا ہے۔ پہلے تو آزاد پالیسی آپ کی بنی نہیں سکتی، نہیں بن سکتی۔ میں یہ کہنا کہ جی ہماری ساورنٹی کوئی نہیں ہے، نہ مستقبل قریب میں ہماری ساورنٹی کا کوئی تصور ہوگا، مجھے کم سے کم نظر نہیں آتا۔ دیکھیں، چند بہت بنیادی چیزیں، کسی ملک کی ساورنٹی کا وہ دور گیا کہ میرے پاس تلوار تھا یا میں جنگجو تھا۔ اب آپ کی ساورنٹی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرنل کنڈیشن اور آپ کی اکانومی پہ۔ ہماری اکانومی ہر لحاظ سے محتاج ہے۔ کب سے؟ جب سے ملک بنا ہے۔ جب سے ملک بنا ہے۔ مجھے ایک دن آپ کہیں گے ہم نے کوئی آزاد فیصلہ کیا؟ نہیں، فیصلہ آزاد نہیں کیا ہے، لیکن آپ کی اکانومی کیا آپ سے کہتے ہیں 1947 سے یہ حال ہے؟ ایسا تو میری بات، اگر آپ کی اکانومی اگر تھوڑی سی بہتر آپ کو ایک دور میں نظر آئی ہے، تب بھی وہ ان کے مرہون منت رہی ہے۔ مثلا آپ کا سب سے اچھا پیریڈ جو پیسوں کے حوالے سے آپ گنیں گے، وہ ضیاء الحق کا تھا۔ وہ پیسے کیوں میں دیے گئے تھے؟ پیسے ہمیں اسی لیے نہیں دیے گئے تھے کہ ہم یہاں پہ کچھ کریں، بلکہ ان کی تابعداری کے لیے ایوب خان کا زمانہ سر، بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بڑی انڈسٹریز لگی ہے، مگر صورت نہیں،
उस पीरियड को आप उस वक्त पैसे आपके आप नहीं समझते थे कंट्रोल? मैं समझता मईशत बड़ी खुशहाल थी। मैं समझता हूं कि अयूब 1947 से पहले चंद फैक्ट्रीज थी सर। 1962 में आपके पास, मेरे पास लिस्ट आपके पास अयूब खान का जो फर्स्ट 5 इयर्स का जो पीरियड था उसमें थोड़ी सी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ गई थी। जब उसमें दूसरी बीमारियां डेवलप हुई फिर अयूब खान भी यही हाल हो गया उसका। उसके बाद देखिए मुल्कों में एक चांस होता है किसी को, चलो आपने ज़मीर बेचा, आपने अपनी ज़मीन दे दी, आपने सब कुछ दे दिया अमेरिका को क्योंकि हमें रूस को शिकस्त देना था। सारे मौलाना साहब इकट्ठे हो गए, हमारे सारे जर्नल मिल गए कि जी अब जो है हम काफिर को शिकस्त देंगे, आप इकट्ठे हो गए। दैट वाज अ चांस फॉर पाकिस्तान एक हिसाब से कि वो पैसा जो बिलियन ऑफ पेट्रो डॉलर से लेके अमेरिकन डॉलर से लेके वो पैसा आपके पास आया और आपने उसको कापी लिया। उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं था। सेकंड चांस यू हैव गॉट अगेन, वो भी ताबेदारी की वजह से पैसे आपको मिल रहे थे, दैट वाज 9/11। आज 9/11 में आपको एक और मौका मिला, वो भी आपने आपके जर्नलों ने और शाखरचियों में खर्च कर दी। देखिए अब जो सूरत हाल है इस मुल्क की, इसमें कुछ बुनियादी चीज़ें जब तक नहीं हुई हैं, मैं ये बात बहुत मतलब क्लियरली कहता हूँ, हमारे फौज के जो लीडर्स हैं वो बड़े नाराज़ होते हैं इस बात पे। जब तक आप पॉलिसी शिफ्ट नहीं करेंगे, फॉरेन पॉलिसी से लेके अपनी इकोनॉमिकल पॉलिसी को कंप्लीटली चेंज नहीं करेंगे, आप एक सावीन और एक ताकतवर मुल्क बन ही नहीं सकते। सर यही तो मेरा सवाल नहीं है बन सकते कि आप कैसे करेंगे। आप तो कह रहे हैं कि कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। आप कहते हो कभी नहीं कर सकते, और उसकी वजह आपने बताई कि आप हमेशा मौशी लेवल पर जो है डिपेंडेंट रहे हो और आप अमेरिका से पैसे लेते रहे हो। देखिए इस वक्त भी जैसे बहुत आसान होता है ये कहना कि ये हम अमेरिका से निकल जाए, अमेरिका क्या कर सकता है। आज आपकी पूरी सिस्टम आर्म फोर्सेस के सिस्टम से लेके दूसरे सिस्टम तक डिपेंडेंट है अमेरिका, इसलिए आप अमेरिका के साथ नहीं छोड़ मेरी सकते। बात सुनिए, देखिए ऐसा नहीं है। ये अगर हम ये कहें कि आज पाकिस्तान आर्मी ये फैसला कर सकता है कि हम अमेरिका से कोई असला नहीं लेंगे, इज इट पॉसिबल? अगर ये पॉसिबल नहीं है, देखिए इस वक्त आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, एक चीज आप लोग बड़े धक्के से बोल देते हो, तुम लोग सियासतदान करप्ट हो, तुम लोगों की पॉलिसियां गलत है। कभी कहा जर्नलों की पॉलिसियां गलत है? जर्नल के ताबे तो नहीं है ना सियासतदान, बिल्कुल जर्नल ताबे हैं सियासतदानों की। नहीं ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन हाँ वो एक अलग बात है, तो उसमें कौन जिम्मेदार है? देखिए मैं समझता हूं उसमें जिम्मेदार कौन है सर? दोनों है। नहीं सर, दोनों है। उसमें जिम्मेदार दोनों कौन है? उसमें जिम्मेदार है सियासतदान। मैं बात करूंगा इसमें आके, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। क्या कहती हैं जनाब आली, ये जो हम पाकिस्तान की जो सियासत है, सियासतदान तो हम क्या कहें, सियासत है, ये अमेरिकन जेरे असर कब निकल सकते हैं? हमें निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते? देखिए डॉक्टर साहब, मिर्जा साहब ने बहुत गहरी बात की है, लेकिन गहरे आदमी है ना वो, इसलिए गहरी बात करते हैं। ज़ाहिर सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन आपका जो सवाल है कि कब निकलेंगे, तो मैं भी यही कहूँगी कि हमारे पास यकजहती नहीं है, हमारे पास एक कंटिन्यूटी नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी रही नहीं है। पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे बना, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम पे बना, लेकिन आप देखें कि आज 65 से 70 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही कर कितने साल है आपके पास? जब एक कंटिन्यूटी नहीं रहती है तो आप ज़ाहिर है दबे रहेंगे, आप मोहताज रहेंगे। और जिस शख्स ने, आपने खुद उसका जिक्र किया, अब देखिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ क्या हुआ? उसका भी मर्डर हुआ ना, उसको भी मारा गया। लियाकत अली खान को आप मसलन ये आप मैं तो लोग कहते हैं, आप कहते हैं, वो एक अलग लोग मसला है। कहते हैं कि उसको स्लो पॉइजन देके उसको खत्म किया गया, ठीक है। लियाकत अली खान को उनको मर्डर कर गया। सिलसिला चलता आ रहा था, फौजी आमिर आते गए, कहते हैं फौजी आमिर के ज़माने में ज़ाहिर है वो ताबेदार है, वो यस मैन है, तो उसको तो पैसे मिलेंगे ही। क्यों, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती हैं या जो अवाम के नुमाइंदे आते हैं, उनको क्यों नहीं पैसे दिए जाते? ठीक है ना, उनको क्यों नहीं फैसिलिटेट किया जाता है कि जी आप अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करो, आप अपने इलाकों में जो है वो तरक्याती काम करो। ये एक प्लानिंग है, इसलिए कि पाकिस्तान जो है वो एक
ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसमें क़यादत थी और वो था शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो। मैं समझती हूँ कोई माने ना माने लेकिन मानते हैं लोग, अब उसकी शहादत के बाद मानते हैं कि जी उसने ये भी किया। उसका जो पूरा प्लान था कि पूरी इस्लामी दुनिया को इन्होंने इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लेकर आए। आपने अभी जिक्र किया तीनों अहम आदमियों को मार दिया। क्यों मार दिया? एक वाहिद जुल्फ़कार अली भुट्टो का वो माइंड था जिसने पूरे इस्लामी ममालिक को इकट्ठा किया, इसलिए अब पाकिस्तान मजबूत हो। उसको उसकी अब जुल्फ़कार अली भुट्टो की तो हमने भी तारीफ कर दी। अब जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद विकीलीक्स ने जो ओपन किया है, भुट्टो के बाद वो आपके कहता पास है क्या क़यादत थी? सियासतदानों का हशर देखा आपने? आपके जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद आपके पास कौन सी क़यादत थी? कौन सी क़यादत? कौन सी क़यादत थी? आप मुझे बताएं ना, नाम गिनवाएं मुझे। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो मैं आज आपको की गिनवाती हूँ। आप आज उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वाहिद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी। उसकी हुकूमत अगर आई 22 महीने, 17 महीने, वो कह रहे हैं 18 कि कोई भी महीने, जेरे असर नहीं रहा ना, सब जेरे असर रहे हमेशा। और आज विकीलीक्स ने ये साबित किया कि हर सियासतदान वो बंदा अमेरिका से अपने ताल्लुकात जोड़ने की यूनाइटेड बात नेशन करता में है। खड़े होके अपने मुल्क, अपने कौम के लिए, इस्लाम के लिए, इस्लामी ममालिक के लिए अपने आप को मजबूत करने के लिए बैठ के हुकूक लड़ा था। वो ही शख्स था ना जो अक़वाम मुत्तहिदा में बैठ के पेपर फाड़ के आया था। किसी में इतनी जुर्रत थी तारीफ तो या है? तारीफ की उस बात जैसा नहीं कर- लीडर कहाँ है नहीं, अब? देखें तारीफ की उस बात, जैसा लीडर है हम तारीफ नहीं मांगते आपसे, हम कहते हैं कि हकीकत को मानो। उसके बाद एक वाहिद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी, अब नहीं है जिसमें कोई? वो साइल, अब कोई लीडर मैं नहीं समझती। अब आप समझती मैं हैं नहीं कोई समझती। लीडर नहीं है। अब आप क्या कहते हैं? आरिफ अलवी साहब कहते हैं लेकिन जुल्फ़कार अली इसका भुट्टो मैं जवाब और उसके दूंगी। बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अब कोई लीडर नहीं है। भाई साहब, अगर माजी में आप जाएंगे तो क्यों हम गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं, उसकी बातें कुछ हासिल भाई ने की, कुछ इन्होंने की। असल में बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ख़ुद कफ़ील नहीं होंगे आप और दयानतदार नहीं होंगे तो हमेशा आप ग़ुलाम रहेंगे। यानी दयानतदारी भी ज़रूरी है कि वो लीडर जो खड़ा होकर स्टैंड ले सके अमेरिका के ख़िलाफ़ स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं, अपनी सॉवरेनिटी की बात करने की ज़रूरत है। अमेरिका के यानी हासिल भाई ने एक बात ये कही कि साहब आप उनके ख़िलाफ़ हो जाएं, नहीं हो सकते, नहीं होना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। मगर सॉवरेनिटी की आदमी बात कर सकता है कि जी हमारा मुल्क ये है, हमारी पॉलिसीज़ ये होनी चाहिए और किसी न किसी स्टेज पर आप गिव एंड टेक करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से। मगर उनके आगे बिछ जाने वाली जो कैफियत है ना, इससे हमको और पाकिस्तानियों को बड़ा सख्त इख्तिलाफ है। मैं तो आपसे कहता हूँ कि विकीलीक्स ने तो अभी 950 डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए हैं, उनके पास 2.5 लाख डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके अंदर मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूं कि पाकिस्तान के हिसाब से बहुत कुछ होगा। मैं ऐसी जो कुछ आ गया है ये तो कम उसके अलावा मैं ऐसी सिफारती महफिलों में मैं मौजूद रहा हूं जिसके अंदर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स अमेरिकनों के साथ जिस अंदाज से बात करते थे और मैं उनको कहता था कि तुम ये क्या कह रहे हो, तो वो कहते थे कि जी ये यही सुनना चाहते हैं। तो इन्होंने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने अमेरिकनों को वो सुनाया जो वो सुनना चाहते थे, अपनी कुर्सियों को बचाने के एतबार से सुनाया। और ये बहाना ज़रूर अपनी जगह पर काम करेगा कि मईशत हमारी बेहतर नहीं। मैं कहता हूँ कि सॉवरेनिटी की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि कायदे आज़म को जब माउंट बेटन का सेक्रेटरी कॉल करता था तो वो कहते थे कि मुझसे बात नहीं करो, मेरे सेक्रेटरी से बात करो, क्योंकि प्रोटोकॉल यही है। 21 तोपों की सलामी जो होती है ना, उसमें चाहे बड़े मुल्क का हो चाहे छोटे मुल्क का हो, कि सॉवरेन लीडरशिप होती है। तो मैं आपके सामने ये बात इंसिस्ट करना चाहता हूं कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी फौज दोनों ने घुटने टेके हैं और अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर से ले तो एक कंटिन्यूटी है ना, शोएब साहब से, अयूब खान के दौर के अंदर मोहम्मद शोएब साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर से, वर्ल्ड बैंक से आए थे, उसके बाद से एक कंटिन्यूटी है कि हम उसकी पाकिस्तान के अंदर मगर नहीं है, जो भी इस किस्म के इदारों में लगता है वो अमेरिकन के आशीर्वाद से लगता है। क्यों लगता है? और यही बिलीफ है। और आप ये देख लिए कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो अंदरून खाना अमेरिकन एम्बेसडर को बात की, वो भी यही कही। उन्होंने कहा और भी आपको मिलेंगे। हम आपके वफादार हैं, ये कहते हैं हम आपके वफादार हैं, मैं आपको कहते हैं हम आपके वफादार हैं। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि कराची में कौंसल जनरल था 2003-2004 में, उसने मुझे ये बताया है और इसमें इमरान खान साहब भी इस बात के गवाह हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप उनके पास गई और उन्होंने कहा जी हमसे बड़ा वफादार तुम्हारा कोई पाकिस्तान में नहीं है और हम तुम्हारी दफा के लिए और तुम्हारी कौंसलेट और एम्बेसी की दफा के लिए 10,000 आदमी खड़े कर सकते हैं। अच्छा, और उन्होंने पूछा, वो एम्बेसडर कौंसल जनरल की बात आपको सुना रहा हूं, मुझे उसका नाम याद नहीं मगर याद भी आ जाएगा। उसने ये कहा कि मैंने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा हमें पैसा चाहिए और असलहा चाहिए।
ہے نا, اور پھر کہنے لگا کہ then I کون should- کون لوگ ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں, اس ملک میں کوئی آدمی ایسا ہے. بھائی صاحب کون ہے؟ آپ کو ایک مثال تو مل گئی نا. مطلب میں جہاں ان کی لیڈرشپ کی تعریف ہو رہی ہے, یقیناً بھٹو صاحب نے ایک سٹینڈ لیا, ایک ساورنٹی کی بات کی. اس طرح سے عمران خان کے سلسلے میں جتنے